Good morning, friends. Today we are going to continue with the third chapter, that is the Partnership Act 1932. In the previous lecture, we have seen the essential features of partnership. I told you that partnership mein there are important elements that has to be fulfilled. First of all, it is an association of minimum 2 persons. That means there has to be a minimum 2 or more than 2 persons in order to form a partnership. Second important features of partnership is partnership will always result from a contract, that is an agreement. Unlike Hindu undivided family, where the person become a member of HUF by birth, that is by status. However, in the case of a partnership, a person will become a partner in the case of a partnership only through an agreement. Which means that if my father is a partner in any partnership firm, I cannot automatically by status become a partner in that firm unless and until I have been admitted in that partnership through an agreement, and there has to be a unanimous consent of all the partners. Third important feature of partnership is there should be a business, and that business should be done with an objective to make a profit. That is, third important feature is कि partnership business या फिर profession carry on करने के लिए होना चाहिए, और वो बिजनेस या प्रोफेशन चैरिटी पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर बाय ऑल द पार्टनर्स. Further, last important element of a partnership is a cardinal principle, that is a mutual agency. That means the partnership will be carried on by all or any one of them acting for all. Which means that any act of the partner will bind the entire partnership firm. Partner will act as a agent, and at the same time he will also behave like a principal. That means he will work under the dual capacity. That means he will be a partner, he will be a agent as well as a principal. In certain activity he will behave like an agent. In certain other activity he will act like a principal. We have seen that law of agency says that if any activity is carried on by an agent with the permission of the principal, principal will be bound by the activity of an agent. In the same manner, if any partner act on the behalf of a partnership firm, and on account of a negligence of that particular partner, if any loss is incurred, entire partnership firm will be responsible for that particular losses. That means partnership firm works on the basic principle or a cardinal principle of mutual agency. So these were the important features of partnership. Today we are going to cover with we'll try to understand the meaning of partners, firm and firm name. Now, firm, individual person who is a partner in a partnership firm will be called as a partner, and collectively all of them will be called as a firm, and under one roof under which they work, a certain name will be given to that particular firm, and that name will be called as a firm name. So this is a basic difference between a partner and a firm. Individually they will be called as a partner, and collectively all the partners will be called as a firm. Now what they have given, refer to your screen. They have given that person who have entered into partnership with one another are called individually partners, and collectively they will be called as a firm. And the name under which their business is carried on is called as a firm name.
it can be any name given to a partnership firm. Generally in 12th standard you might have seen that while solving the problem there were A, B, C and company. So that A, B, C and company is nothing but a firm name. So any name can be given to a firm. Noble Enterprises is a partnership firm of 3 partners. So that Noble Enterprises is a name given to that partnership firm. A firm is not a separate legal entity distinct from its member. It is merely a collective name of individual composing it. Unlike a company, in the case of a company, you will see that a company is a separate legal entity. That means a member and the company will be separate. 2 different identities. Members are different and company is different. Whereas this is not a case with a partnership. In case of a partnership, partners, individual partner, collective partner will be called as they will not be called as a group of partners, but in one word they will be called as a firm. So here the firm and all the partners collectively they are one and the same. It's not a separate legal entity. That means any agreement which will be done in the name of a partnership firm, so that agreement will not be, though it will be in the name of a partnership firm, but whenever if any dispute arises, so court will look for the partners who have signed that particular agreement. So here partnership firm and partners are not separate legal entity, but they are same, one and the same. Hence, unlike a company which is a separate legal entity distinct from its member, a firm cannot possess property or employ a servant, neither it can be a debtor nor a creditor. Though the partnership, you are going to call it as in the name of the firm, whatever agreement you are going to carry on, you will call it as I have entered into an agreement with a Noble Enterprises. Noble Enterprises is a firm of 3 partners. But even if I say like this कि मैंने Noble Enterprises के साथ एक करार किया है, एक agreement किया है, तो यहाँ पे Noble Enterprises will not come into picture. Always जो भी वो Noble Enterprises के पीछे छुपे हुए partners है, तो it will always be, though it is signed by Noble Enterprises, that means it will be signed by the partner of a Noble Enterprises. Even if I say that कि मैंने Noble Enterprises के साथ कोई agreement sign किया है, तो यहाँ इनडायरेक्ट मीनिंग ये निकलेगा कि मैंने नोबल एंटरप्राइजेस के साथ नहीं बल्कि उनके पार्टनर्स के साथ मैंने एग्रीमेंट किया है. अनलाइक इन द केस ऑफ ए कंपनी. कंपनी के केस में कंपनी का एक सील होता है, वी कॉल इट एज अ कंपनी सील, और जो भी वहां पे एग्रीमेंट बनेगा इट विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी. तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी उनके मेंबर्स से अलग है, तो वहां पे जो भी एग्रीमेंट साइन होगा इट विल बी इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल. कंपनी हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ ए आर्टिफिशियल पर्सन. मगर पार्टनरशिप के केस में यहाँ ऐसा नहीं है. पार्टनरशिप को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस नहीं दिया गया है. यहाँ पे जब भी आप कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट पार्टनरशिप फर्म के साथ साइन करोगे तो वहां पे मीनिंग ये निकलेगा कि आपने उनके पार्टनर्स को एग्रीमेंट में बांधा है, ना कि उस फर्म को बांधा है. फर्म इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स. तो व्हेनेवर इवन दो एग्रीमेंट विल बी इन द नेम ऑफ द फर्म, बट यू विल से टू इट इनडायरेक्टली, उसका मीनिंग ये निकलेगा कि आपने एग्रीमेंट उनके पार्टनर्स के साथ किया. It cannot sue or be sued by others. It is only for the sake of convenience that in commercial uses, terms like firm's property, employee of the firm, suit against the firm, and so on are used. But in the eye of law, that simply means property of partners, employee of partners, and suit against the partners of that firm. So for convenience, आप फर्म का नाम लेते हो, लेकिन यहाँ पे indirect meaning यही निकलेगा कि आपने कोई भी करार जो किया है, वॉट एवर प्रॉपर्टी इफ यू हैव परचेज, या फिर कोई एम्प्लॉय को हायर किया है, तो वो सभी एग्रीमेंट उस एम्प्लॉय का विद द पार्टनर्स होगा. जो भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स है उनके साथ उनका करार होगा. फर्म की प्रॉपर्टी है तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकलेगा कि वो प्रॉपर्टी फर्म की है, यानी वो पार्टनर्स की है. अनलाइक इन द केस ऑफ ए कंपनी, कंपनी की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मेंबर्स का उस पर कोई हक नहीं रहेगा. लेकिन पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उस पे पार्टनर्स का हक होगा.
It is relevant to state that for the purpose of Income Tax Act, a partnership firm is an entity quite distinct from partners composing it and is assessable separately. Fine. So this is a rule as regards to partnership firm and partners. Now we will just look for the differences between a partnership firm and other institution. First distinction is between a partnership and a joint stock company. Joint stock company is nothing but a limited company. A limited company, as you are aware that limited company is a separate legal entity which is also called as an artificial person. So we just look for the difference between a ordinary partnership firm and a joint stock company. A partnership firm is getting registered under the Partnership Act 1932. Though the number of members कितने maximum number of members एक partnership firm में हो सकते हैं, that has been defined by the Companies Act, but still partnership will get registered, will get formed under the Partnership Act 1932. यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का रूल अप्लाई होगा पार्टनरशिप को, whereas in the case of a company is registered under ROC, that is Registrar of Companies. So we will try to look for the difference between a partnership firm and the company one by one. पहला क्या बोल रहा है? First case is about a legal status. Legal status में क्या बोला गया है कि partnership firm is not a separate legal entity. That means partner और पार्टनरशिप फर्म इट इज वन एंड द सेम, वो दो अलग अलग कैटेगरी नहीं है. लेकिन इन द केस ऑफ ए कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द सेंस दैट एक कंपनी और उसके मेंबर्स दो अलग अलग कैटेगरी है. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन. वो आगे कोई क्लास में अगर टाइम रहा तो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस पर्टिकुलर केस सोलोमन वर्सेस सोलोमन. वहां पे सोलोमन वाज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी विच हैज फॉर्म द कंपनी इन द नेम ऑफ सोलोमन इटसेल्फ. तो बनाने वाला भी सोलोमन था और कंपनी का नाम भी वहां पे सोलोमन रखा गया. और वो केस उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने जजमेंट दिया कि प्रमोटर दैट इज अ सोलोमन और अ कंपनी दैट इज सोलोमन लिमिटेड आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी. दे आर नॉट सेपरेट, दे आर नॉट सेम आइडेंटिटी, दे आर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. तो वहां से ये रूल फॉर्म हुआ कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. मेंबर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी? मेंबर्स आर द शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स और कंपनी, दो द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट स्टिल यहाँ पे जो भी एग्रीमेंट साइन होगा वो कंपनी उसके खुद के नाम से साइन करेंगी और कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स दैट इज अ मेंबर दो अलग अलग कैटेगरी है. दे आर द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. एजेंसी, सेकेंड पॉइंट में एजेंसी कवर किया गया है. एजेंसी का मीनिंग ये है कि इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. दो दे आर ऑल्सो प्रिंसिपल बट दे will always work as an agent of other partner. एजेंट का मीनिंग ये है कि वो जो भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए एंटायर पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल. अगर प्रॉफिट होता है तो सभी शेयर करेंगे. इवन अगर एक पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से अगर लॉस हुआ तो वो लॉस की भरपाई अकेला पार्टनर जिसने वो काम किया है उसके वो तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा बाकी सब पार्टनर्स भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. तो दैट मीन्स पार्टनरशिप विल ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ लॉ ऑफ एजेंसी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. Whereas in the case of a company, members are not the agent of the company. They will agent in the sense they are not the agent of other members. अगर एक मेंबर से गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे मेंबर पे नहीं आएगी इन द केस ऑफ ए कंपनी. लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर एक पार्टनर से गलती होती है पार्टनरशिप का काम करते वक्त तो वो गलती की भरपाई सभी पार्टनर को करनी पड़ेगी. अनलाइक इन द केस ऑफ ए कंपनी, अगर एक मेंबर से कोई गलती होती है तो उसके लिए दूसरा मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. तो वहां पे लॉ ऑफ एजेंसी काम नहीं करेगा इन द केस ऑफ ए कंपनी. सो व्हाट इट हैज बीन सेड, in a company a member is not the agent of other members or of the company. His action do not bind the others. उसके एक्टिविटी के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे. लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में
जो भी पार्टनर एक्टिविटी करेगा उसकी सभी जिम्मेदारी उस पे आएंगी और उसके अलावा सभी पार्टनर्स पे आएंगी। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप, स्टार्टिंग में जब आप एग्रीमेंट बनाओगे, एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू राइट डाउन द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। So there is a fixed ratio, the ratio at which the profit earned by the partnership firm will be shared by all the partners. लेकिन कंपनी के केस में एक फिक्स रेशियो नहीं रहेगा। It may change from year after year. It may be also decided that कि हो सकता है कि पार्टनरशिप, और in the case of a company there may be a sufficient profit, but still they may decide that कि no profit should be distributed in the form of a dividend among the shareholders, because they may foresee that they may decide that such profit should be kept as a reserve, which will be useful in the future work in the case of an expansion. तो कंपनी के केस में प्रॉफिट शेयरिंग फिक्स नहीं रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग जो है that will be distributed in the form of a dividend, और वो हर साल चेंज हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट शेयरिंग विल बी फिक्स। इन द केस ऑफ लाइबिलिटी सिनेरियो, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, इट हैज बीन सेड दैट के पार्टनरशिप फर्म के केस में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। यानी इसका मीनिंग ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के डेप्ट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पार्टनरशिप के एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ दैट पर्टिकुलर डेप्ट, तो इवन पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट है, तो दोज एसेट विल बी सेल ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग द अमाउंट एंड पेइंग द डेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप। दैट्स द रीजन इट हैज बीन सेड दैट कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। Whereas in the case of a company, liability of the shareholders will be limited to the extent of unpaid value of share. इसका मीनिंग ये है कि अगर शेयर 10 रुपीज का है और आपने अभी तक उस शेयर पे 8 रुपया पे किया है, तो योर लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, दैट इज ₹2। यानी 10 रुपए का शेयर है, आपके पास 100 शेयर्स है, आपने 8 रुपये पर शेयर यानी 800 रुपए अभी तक दिए, तो आपकी लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू, दैट इज ₹200। तो इन द केस ऑफ ए कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड, whereas in the case of a partnership the liability of partners is always unlimited. There is a limited liability partnership, वो एक दूसरा फॉर्मेट है जिसको LLP डिफाइन किया गया है, जहां पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर विल बी लिमिटेड, लेकिन वो यहाँ पे वी आर नॉट कवरिंग। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हो तो वहां पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज बी अनलिमिटेड। प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है। It is a joint property of all the partners. If any property, any land, any vehicle, any asset, if it has been purchased in the name of a partnership firm, we have already seen that कि partnership firm एक separate legal entity नहीं है। तो एक convenience के तौर पे आप बोलोगे कि वो firm की property है, लेकिन actual देखा जाए तो firm की property का meaning ये है कि वो सभी partners की property है। तो फर्म की प्रॉपर्टी और पार्टनर्स की प्रॉपर्टी इज वन एंड द सेम इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप। वेयर एज इन द केस ऑफ ए कंपनी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वो कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी रहेंगी, उसमें मेंबर का कोई हक नहीं होगा। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो इनडायरेक्टली वो प्रॉपर्टी पार्टनर की ही है, लेकिन कंपनी के केस में अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो तो कंपनी की होंगी, ना कि उसके मेंबर्स की। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर। ट्रांसफर हिज शेयर इन द सेंस के उसका जो भी उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी शेयर होगा, प्रॉफिट का, लॉस का, जो भी होगा,
जो भी जिस टर्म्स पे उसको एडमिट किया गया है, अगर वो अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो बिना बाकी पार्टनर्स के कंसेंट लिए बिना ट्रांसफर नहीं कर सकता। अनलाइक कंपनी के केस में अगर किसी शेयर होल्डर्स को, किसी मेंबर को अपने शेयर अगर ट्रांसफर करना है तो वो बेझिझक ट्रांसफर कर सकता है बिना दूसरे मेंबर की परमिशन लिए। अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर है, सपोज रिलायंस लिमिटेड के मेरे पास 100 शेयर्स है और ये 100 शेयर्स मुझे मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करना है, तो मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बिना किसी दूसरे मेंबर की परमिशन लिए मैं वो शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। आगे क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट। In case of a partnership firm, partners are the owner as well as the manager of the partnership firm. That means वो ओनर भी रहेंगे और वो पार्टनरशिप फर्म को मैनेज भी करेंगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में there are different managers. They are generally called as a managing directors. So members, that means the owner and the person who manages the company are two different people. Directors are generally the promoters and they are the managers. They will, no doubt they will have certain shares in the company. लेकिन बाकी लोगों के पास भी shares रहेंगे, तो जिसके पास shares है they are called as a members. And the one who look after the company, look after day-to-day affairs of the company, they are called as the managers of the company. So in the case of the company, members and the managers are two different people. Whereas in the case of a partnership, partners are the owner, managers of the partnership firm. What it has been said, in the absence of express agreement, all the partners are entitled to participate in the management. In the absence of express agreement to the contrary, इसका मीनिंग ये है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि 3 पार्टनर्स है X, Y, Z and Z will be a sleeping partner, तो X and Y will manage the partnership. लेकिन अगर ऐसा कोई करार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो all of them will look after the partnership. लेकिन कंपनी के केस में क्या बोला है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट unless they are appointed as a director, in which case they may participate. Members, however, enjoy the right of attending the general meeting, voting where they can decide certain questions such as election of directors, appointment of auditors, etc. तो members, though they are the owners of the company, लेकिन वो मैनेज नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजर्स को अपॉइंट करने का पावर उनके पास रहेगा एंड दैट पावर कैन बी यूटिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वोटिंग राइट्स. दो they have a voting rights, they can appoint the director, they can appoint the managers of the company, but they themselves will not look after the company. So in the case of the company, managers, that is the directors, and well as and the members are two different identities. They are two different people. रजिस्ट्रेशन में क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ROF में रजिस्टर्ड होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. If suppose you and I decide to form a partnership, so we'll simply on the piece of paper we'll write down each other's name, we'll define the ratios of sharing profit and as well as the losses, and all other terms and conditions will be decided, and we can start with a partnership, we can start with the business, we can start making profit and we'll share those profit at those terms that has been written under the partnership agreement. So यहाँ पे registration mandatory नहीं है in the case of a partnership, लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी. कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 जिसको अपन बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके केस में उनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी.
विदाउट रजिस्ट्रेशन अ कंपनी कैन नॉट फ्लो, लेकिन पार्टनरशिप के केस में विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पार्टनरशिप फर्म कैन फ्लोट, दे कैन कैरी ऑन विद द बिजनेस। उसके बाद है वाइंडिंग अप। Dissolution of partnership can be done with the consent of all the partners. They can decide that though it is a profit-making partnership, but there may be certain reason that partners may say that they are not able to give a sufficient time to a partnership firm, and one fine morning they will come up and they will say that we will dissolve. So they can dissolve at any point of time. However, if there is a particular partnership formed for a specific purpose, as soon as the purpose is over, the partnership firm can dissolve. However, if there is a partnership at will, any partnership उसके मन में जब आएगा वो एक नोटिस देगा and they can dissolve. लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी is a separate legal entity, यानी whenever you form a company, it's like आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है, that means it is a birth of a child. तो आपने किसी बच्चे को बर्थ दिया है, चाइल्ड को आपने इस दुनिया में लाया है, तो आप उसका मर्डर नहीं कर सकते हो। तो वहां पे अगर डिसोल्यूशन करना है, उसको मारना है, तो वहां पे आपको कोर्ट के परमिशन से उसको मारना पड़ेगा, यानी डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू कैन डिसॉल्व, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और इट्स नेम इज स्ट्रक ऑफ बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। दैट मीन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स जहां पे एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंपनी को डिसोल्यूशन करने का ऑर्डर देगा। यानी इसका मीनिंग क्या है कि आपको किसी कोर्ट में किसी ट्राइब्यूनल के पास जाके उनका परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप आपकी कंपनी को आप डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन कंपनी के केस में, पार्टनरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिसोल्यूशन करना है, आप कभी भी कर सकते हो। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप के केस में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि सेक्शन 4, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि दो द पार्टनरशिप विल गेट रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं वो कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया है। एक कंट्रोवर्सी है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में कर रहे हो, लेकिन मेंबर्स कंपनी एक्ट में बोला गया है, तो जो है तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली ओनली। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए, according to section 464 of the Companies Act, the number of partners in any association shall not exceed 100. लेकिन the rule given under the Companies Rule 2014 restrict the present limit to 50. दो 100 का रूल डिफाइन किया गया है, लेकिन at present maximum number of partners as per the Companies Act can be 50. और कंपनी के केस में क्या बोला गया है, पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50, whereas in the case of कंपनी क्या बोला गया है कि a private company may have as many as 200 members but not less than 2, and a public company may have any number of members but not less than 7. Private company minimum 2, maximum 200, public company minimum 7, maximum no limit. उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम तक वैलिड हो सकता है, तो पार्टनरशिप के केस में अगर पार्टनरशिप एट विल है तो जब तक पार्टनर्स के मन में नहीं आता है, जब तक पार्टनरशिप फर्म विल कंटिन्यू। हाउएवर, अगर उसके कंटिन्यूटी के बीच में अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी की डेथ हो गई, या दो पार्टनर है उसमें से एक रिटायर्ड हो गया, या दो पार्टनर्स है उसमें से एक इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप फर्म हैज टू कंपल्सरी गेट डिसॉल्व, उनको बंद करना पड़ेगा। अगर दो से ज्यादा पार्टनर्स है और अगर एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कंटिन्यूटी का, तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म विल गेट
डिसॉल्व। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में अगर ऐसा कोई क्लॉज है कि अगर 3 पार्टनर्स है उसमें से एक अगर रिटायर्ड हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बाकी 2 पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। उस केस में पार्टनरशिप विल गेट कंटिन्यू, अदरवाइज दे विल हैव टू गेट डिसॉल्व। लेकिन कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मीनिंग है कि इमॉर्टल, मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी के ढांचे को फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, तो उससे बोला जाता है परपेचुअल। परपेचुअल यानी इमॉर्टल, वो सालों साल कंपनी चलता रहेगा। तो दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फर्म और क्लब। अब क्लब क्या होता है? क्लब में आपने देखा होगा कि देयर इज अ रोटरी क्लब, देयर इज अ कंट्री क्लब। तो क्लब के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर 3 पत्ती क्लब होता है। अपन देखते हैं ना कि बहुत से लोग रात में क्लब में जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एंजॉयिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन। तो कुछ क्लब्स के ऑब्जेक्टिव इज रिक्रिएशन, कुछ क्लब्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि रोटरी क्लब का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो उनके दे हैव अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो वी विल सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड क्लब। How it has been defined, I am not going to define again a partnership. Now how the club has been defined? A club is an association of persons formed with the object not of earning profit but of promoting some beneficial purpose such as improvement of health, providing recreation for the members, etc. etc. में you can call it as a social objective. तो क्लब के प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं। क्लब क्या होता है जनरली कि ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ क्लब और उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। देयर आर सैटरडे क्लब। सैटरडे क्लब है जलगांव के अंदर, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जनरली सैटरडे मिलते हैं एंड वहां पे कि बिजनेस को किस तरीके से प्रमोट करना, तो वहां पे वो उस क्लब में बताया जाता है। तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव लेके वो चल रहे हैं। प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है। वहां पे सब्सक्रिप्शन फी रहेंगी, जनरली एक ईयरली फीस होती है जो आपको पे करना होता है, और वो ईयरली फीस आपसे क्यों लेते हैं? सो दैट ये सब मीटिंग का खर्चा वो लोग उठा सके। तो क्लब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म होता है, ना कि फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड मेकिंग अ प्रॉफिट। वेयरएज पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव ही बिजनेस है कि पार्टनरशिप वहां पे बिजनेस के लिए फॉर्म होगा, प्रोफेशन के लिए फॉर्म होगा, और प्रॉफिट कमाना उनका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन क्लब के केस में ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में क्या बोला है कि पार्टनरशिप will always work on a cardinal principle of mutual agency. That means partner are the agent as well as principal. They are the agent of other partners as well as they are also a principal. कुछ चीज में वो दूसरों पार्टनर्स की सुनेंगे, कुछ चीज में वो डोमिनेट करेंगे अगर उनके पास एक्सपर्टाइज नेचर है तो। लेकिन क्लब के केस में क्लब के जितने लोग रहेंगे दे आर नॉट कॉल्ड एज अ पार्टनर बट दे विल बी कॉल्ड एज अ क्लब मेंबर्स। What it has been said, person forming a club are members. A member of the club is not the agent of other member. Obviously, वहाँ पे एक मेंबर दूसरे मेंबर से अलग रहेगा, उसकी एक्टिविटी के लिए दूसरा मेंबर जिम्मेदार नहीं रहेगा। अनलाइक पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में एक्ट ऑफ द पार्टनर विल बाइंड द पार्टनरशिप फॉर्म, whereas in the case of a club, an act of any member will not bind the other members. Then there is an interest in the property. पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की रहेंगी, लेकिन क्लब के केस में क्लब की प्रॉपर्टी मेंबर्स की नहीं रहेंगी। दो मेंबर कैन मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। जैसे कि क्लब होता है जहाँ पे यू गो टू एंजॉय योरसेल्फ, तो वहाँ के जो एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, उसका आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपकी नहीं। पार्टनरशिप के केस में जो भी पार्टनरशिप के फर्नीचर्स रहेंगे, व्हीकल रहेंगे, वो सभी पार्टनर्स की रहेंगी, लेकिन क्लब के केस में ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन मैंने बताया कि पार्टनरशिप के केस में रिटायरमेंट,
insolvency, death, all this will result in a dissolution of the partnership firm. लेकिन मेंबर्स के केस में ऐसा कुछ, अरे क्लब के केस में ऐसा कुछ नहीं है. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, दे विल गिव देयर रेजिग्नेशन. क्लब के ढांचे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्लब विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर. तो व्हाट इट हैज बीन सेड, अ चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ क्लब डज नॉट अफेक्ट हिज एग्जिस्टेंस. तो उसके एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. We have covered a distinction between a partnership and a joint stock company, and a second one is a distinction between partnership firm and club. इसके अलावा भी there are other distinctions that we are going to cover in the coming lecture. I hope you have understood the topic, and if you have any doubt, please ping me. I request all of you कि please pray for my father. He is in ICU and I need your support. Pray for my father so that he comes out successful in good health from a hospital. Thank you so much.